ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت جل شانہ کریم اپنی پاکیزہ کتاب قرآن پاک میں یہ اعلان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ بے شک۔ حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن، اور تم نہ مرنا۔ ولا تموتن، اور تم نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، جب تک کہ تم مسلمان نہ بن جاؤ، جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت جل شانہ کریم کا یہ پیغام اللہ کی اس پاکیزہ کتاب قرآن پاک سے جب یہ سبق ملا تو کیا پتہ چلا اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے۔ سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری۔ یا رسول اللہ، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آئیے میں ایک شعر پڑھ کر پھر اپنی تقریر کا رخ لیتا ہوں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ آیا نہ کوئی حرف الف لام بچ گیا، آیا نہ کوئی حرف الف لام بچ گیا، یعنی رسول پاک کا پیغام بچ گیا، یعنی رسول پاک کا پیغام بچ گیا۔ اور آتی ہے نو کے نیزہ سے شبیر کی صدا، آتی ہے نو کے نیزہ سے شبیر کی صدا، ارے سر کٹ گیا تو کیا ہوا اسلام بچ گیا، سر کٹ گیا تو کیا ہوا اسلام بچ گیا۔ مسلمانوں، آج نعیم اللہ پردھان صاحب کے در دولت پر ان کے پوتوں کے ختنے کے موقع پر یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رچایا بسایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت جل شانہ کریم اس پاکیزہ بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ ہماری آپ کی سبھوں کی حاضری کو مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ محترم حضرات، غور کرنے کا مقام ہے، آج اس پرفتن ماحول میں بھی انہوں نے نبی کی پاکیزہ محفل کو سجا کر ہمیں اور آپ کو ایک اچھا سبق دیا ہے، ایک اچھا پیغام دیا ہے۔ اے مسلمانوں، آج آپ دیکھ رہے ہیں اس پرفتن ماحول کو دیکھتے ہوئے کہ جس طریقے سے آج دنیا میں معاملات چلتے نظر آتے ہیں، لیکن آج جو ہمیں اور آپ کو سبق مل رہا ہے نبی کی پاکیزہ محفل سے، اے مسلمانوں، یہ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے دل میں یہ خیال ہے ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے اللہ ہماری خطائیں معاف کر دے گا۔ نماز ہم پڑھتے ہیں عبادت کے لیے، روزہ عبادت ہے، حج
इबादत है, ज़कात इबादत समझ के करते हैं। लेकिन ए मुसलमानों याद रखना, आज हम नमाज के लिए चलते हैं तो पहले अपने बदन को पाक करते हैं। वाह, वाह, जब वाह। मस्जिद के लिए नमाज के लिए निकले हैं अपने अपने कपड़ों को, अपने लिबास को पाक करते हैं, अपने बदन को पाक करते हैं। पाक करने के बाद में अल्लाह के उस पाकीज़ा घर की तरफ बढ़ते हैं, जिस घर में जाकर हमें और आपको अल्लाह की इबादत करनी है। अल्लाह के उस पाकीज़ा घर के लिए जाते हैं। लेकिन हे मुसलमानों याद रखना, जब हम नमाज के लिए चलते हैं तो हमारा बदन पाक होता है, हमारा लिबास पाक होता है, हमारी ज़बान पाक होती है, हमारी आंखें पाक होती है, हमारा कान पाक होता है। इसी तरीके से नमाज अल्लाह की इबादत है, रोजा अल्लाह की पाकीज़ा इबादत है, हज अल्लाह की इबादत है। तो ये मुसलमानों याद रखना, ये खतना भी अल्लाह की एक इबादत है जो किसी और की नहीं बल्कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाकीज़ा सुन्नत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमें और आपको इस चीज की जरूरत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको इस दुनिया के अंदर पैदा किया। चलिए चलिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत अच्छे। अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदको तवस्सुल से ये जो पाकीज़ा बज़्म सजाया गया है इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। ए मुसलमानों, आज हमारे यहां, आपके यहां जब ये देखा जाता है कि आज हम कादरी हैं तो हम अपनी कादरियत पर गुरूर करते नजर आते हैं। अगर कोई रज़वी है तो अपनी रज़वियत का झंडा लेकर के गाड़ रहा है। अगर कोई हशमती है तो वह हशमतियत का झंडा लेकर के निकल रहा है। कोई बरकाती है तो अपनी बरकातियत का झंडा लेकर के निकल रहा है। लेकिन ए मुसलमानों, हमें और आपको याद रखना है कि आखिरकार आज हम क्यों इन फितनों में फंसे हैं। कादरी है वो अपनी जगह है, रज़वी है वो अपनी जगह है, हशमती है वो अपनी जगह है। लेकिन ए मुसलमानों, आज हमारा माशरा किस कदर उलझा नजर आ रहा है। अभी मेरे आने के बाद कारी सनाउल्लाह साहब ने कहा कि मौलाना इकबाल साहब आप थोड़ी सी इस माहौल पे रोशनी डाल दें ताकि लोगों को ये पता चले कि सिलसिले में किस तरीके से कौन सिलसिला कैसा है। तो हमने कहा मेरे भाई, सिलसिला कोई भी हो, चाहे वो कादरी हो, माशाअल्लाह उसका भी क्या कहना, चाहे वो रज़वी हो उस सिलसिले का भी क्या कहना, चाहे वो चिश्ती हो, चाहे वो सहरवर्दी हो। ए मुसलमानों याद रखना, आप जानते हैं, आपको पता होना चाहिए दुनिया के अंदर बहुत सारे सिलसिले हैं, लेकिन हमें सिलसिलों पे बहस नहीं करना है। हमें और आपको किसी सिलसिले पे नहीं बहस करना है। अगर वो कादरी है तब भी हमें उसको अपने सीने से लगा के रखना है। अगर वो रज़वी है तब भी हमें उसे अपने सीने से लगा के रखना है। अगर वो बरकाती है तब भी हमें उसे अपने सीने से लगा के रखना है। आज कादरी अपनी तरफ कह रहा है मैं बड़ा हूं, रज़वी अपनी तरफ कह रहा है मैं बड़ा हूं, मुशाहिदी अपनी तरफ कह रहा है मैं बड़ा हूं, चिश्ती अपनी तरफ कह रहा है मैं बड़ा हूं। लेकिन मैं आइए आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अब मुझे ना कहने दिया जाए, ना मौलाना तैयब साहब किबला से पूछनी है, ना वो किसी और से हमें और आपको पूछना है। अगर ये मामला है तो इस मामले को हम किसी और पे ले जाकर के फैसला नहीं करना चाहते हैं। मौलाना इकबाल का फैसला नहीं माना जाएगा, मौलाना तैयब सलीम किबला मुशाहिदी का फैसला नहीं माना जाएगा, कारी सनाउल्लाह का फैसला नहीं माना जाएगा। अगर ये वाहिदी है तो ये वाहिदियत का झंडा लेकर के निकल रहे हैं। अब वाहिदी से बड़ा कोई पीर नहीं है। अगर जो है, अगर कोई रज़वी है तो वो अपने आप को सबसे बड़ा मान रहा है। अगर कोई हशमती है तो वह हशमतियत को सबसे बड़ा बताता है। हमने कहा हम नहीं मानते हैं, चाहे वो गरीब नवाज का सिलसिला हो, चाहे वो मखदूम पाक का हो, चाहे वो वारिस पाक का हो, चाहे वो साबिर कलियर का हो। और बरेली के इमाम की बारगाह में चलते हैं। ए मेरे इमाम सरकार आला है नारे तकबीर, सैयदी सरकार आला हजरत की पाकीज़ा बारगाह में जब मैंने अपने सर को झुकाया है तो बरेली के इमाम की बारगाह में जब सर को रखा तो बरेली के इमाम ने क्या ही फैसला करके बताया है। वो लोगों सुनो, आज हम हैं अपना झंडा लेकर के दौड़ रहे हैं, वो हैं अपना झंडा लेकर के दौड़ रहे हैं। आज क्यों हम पीर के चक्कर में लड़ते नजर आते हैं, सबब क्या है? आओ बरेली के इमाम से पूछते हैं तो मेरे इमाम ने क्या ही फैसला किया है। बरेली के इमाम
इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, अरे कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठाओ, कादर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, वाह, वाह। कादर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। ए मुसलमानों, हमें और आपको सिलसिलों पे बहस करने की जरूरत क्या है? अगर चाहे वो चिश्ती हो तो भी, चाहे वो चिश्ती हो, चाहे वो वारसी हो, चाहे वो मदारी हो, चाहे वो रज़वी हो, चाहे वो बरकाती हो, कोई भी सिलसिला हो, लेकिन ए मुसलमानों, सब पीर हैं, सब पीर हैं, लेकिन सरकार गौसे आजम में, सरकार गौसे आजम का वो पाकीज़ा दर है जिसके बारे में आला हजरत ने कहा, ओ लोगों, सब पीर हैं लेकिन गौसे आजम बड़े पीर हैं। सुभान अल्लाह। पता क्या चला? अब हमें सिलसिलों पे बहस करने की जरूरत नहीं है ना, हमें और आपको यह कहना है फला वाहिदी है, अल्लाह का शुक्र है कि उसके सीने में कुरान है, उसके हाथों में मजहब इस्लाम का दामन है। अगर उसके हाथों में चिश्तियत का झंडा है तो खुदा की कसम यह कम नहीं है, उसके हाथ में रज़वियत का झंडा है तो यह कम नहीं है, उसके हाथ में वारिस पाक का दामन है तो यह कम नहीं है। बड़ा छोटा बताने की जरूरत नहीं है, बड़ा और छोटा कौन है यह हमें तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मेरे इमाम सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खा फाजिले बरेलवी ने ये पुकार के कहा था, हम चिश्ती भी हैं, हम कादरी भी हैं, हम रज़वी भी हैं, हम बरकाती भी हैं। सैयदी सरकार आला हजरत ने अपने आप को चिश्ती भी कहा है, अपने आप को शारबर्दी भी कहा है, लेकिन सुनो, सैयदी सरकार आला हजरत ने यह भी बता दिया है, ओ लोगों, अगर वो चिश्ती है तो अपनी जगह है, लेकिन कोई सरकार गौसे आजम के मकाम को नहीं ले सकता है। सरकार गौसे आजम का वो मकाम जो रखा गया है। ए मुसलमानों, आज हमारे यहाँ, आपके यहाँ, आज जिस तरीके से देखा जा रहा है, आज कौम को तो छोड़िए, आज हमारी उलमा जमात में भी बहुत सारे ऐसे तनाव पाए जाते हैं। लोग ये देखते हैं, मिंबर रसूल पे भी ये देखा जाता है, यह हशमती है, यह मुशाहिदी है, यह रज़वी है, यह बरकाती है, यह चिश्ती है। लेकिन हे मुसलमानों, अब हमें और आपको गौर करने की जरूरत है कि जब मेरे इमाम ने साफ कह दिया है, हम चिश्ती बाद में हैं, पहले कादरी हैं, हम चिश्ती बाद में हैं, पहले कादरी है, तो हे मुसलमानों, अगर कोई चिश्ती है तब भी वो कादरी है, कोई सारवर्दी है तब भी वो कादरी है, कोई रज़वी है तब भी वो कादरी है, अगर कोई मुशाहिदी है तब भी वो कादरी है, क्योंकि बरेली के इमाम ने फैसला कर दिया है, या रसूल अल्लाह, अरे कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कादर कुदरत नुमा के मुसलमानों। आज जो ये अकीका का दो बच्चों का अकीका है, अल्लाह के कायनात परवरदिगार आलम उस अकीके को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। जैसा कि मौलाना तैयब साहब किबला ने मुझे 15 से 20 मिनट का वक्त दिया था और इस वक्त मुकम्मल 15 मिनट पूरे हो चुके हैं। मैं चाहता हूं कि उन उलमा अहले सुन्नत की एक लंबी जमात है, मैं अपनी बात को आगे न बढ़ाकर नाज़िम इजलास की बातों पर हुक्म करते हुए मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूं। कारी सनाउल्लाह साहब किबला ने मुझे कुछ अनुमान दिए थे, लेकिन मैं उसे यहीं अधूरा छोड़ रहा हूं। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो मैं बयान करूंगा। अल्लाह के कायनात की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम इस पाकीज़ा बज़्म को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। जिन बच्चों के अकीके के मौके पर यह मिलाद मुस्तफ़ा रचाया, सजाया, बसाया